اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمنا، جو کوئی آمنہ ایمان لے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، تو لفظ صائبین، یہاں پہ لفظ صائب بے دین جو لوگ ہیں، صائبین کا لفظ جو ہے وہ سبا سے بنا ہے۔ علامہ ابن جریر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو شخص ایک دین کو چھوڑ کر پھر دوسرا دین اختیار کر لے، اس کو لغت میں صائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لغت میں صائب کہتے ہیں۔ اور صائبی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین مذہب ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صائب سے مراد یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو یہود کے درمیان ایک قوم کا نام ہو سکتا ہے۔ علامہ قرطبی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صائبین دراصل اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ جو صائب لوگ ہوتے ہیں یہ فرشتوں کو پوجتے ہیں، تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ صائبین کے کئی فرقے ہیں۔ روم کے جو صائب تھے وہ ستارہ پرست تھے، ہند کے جو صائب ہیں وہ بت پرست ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صائبی جو ہے وہ بت پرست نہیں ہے، بلکہ یہ ستاروں کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ روح المعانی میں یہ بات علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو صائبہ کا ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں رد المختار میں۔ اب مختلف مفسرین، مختلف فقہاء کرام جو ہے وہ ان کے بارے میں مختلف آیات مبارکہ اور مختلف حوالے دیتے ہیں۔ آگے بات کی جا رہی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے، اور ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر دے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا سے مراد، ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا سے مراد جو زبان سے ایمان لیں، یہاں سے جو زبان سے ایمان لیں، اور من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد ہو گیا جو لوگ دل سے ایمان لیں۔ جو زبان سے بھی ایمان لیں وہ منافق ہوتے ہیں، صرف جو دل سے بھی ایمان لیں وہ مومن ہوتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، انہیں نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ جیسے اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین آمنوا سے مراد ہو گیا زبان سے ایمان لانا، اور من آمن باللہ والیوم الآخر سے ہو گیا جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اب آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یہاں پہ اب سمجھا دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینا، یہاں پہ اب جو بتایا جا رہا ہے، ایمان لانا جو ہے وہ اللہ پر ضروری ہے۔ جب تک بندہ مومن نہیں ہوگا یا ایمان نہیں لائے گا، آخرت کو نہیں مانے گا، جو عقائد ہیں اس کے وہ نہیں مانے گا، تو وہ سمجھ لیں کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہیں آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے اجر بھی دیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مزید فرمایا کہ جب تک یہودی، عیسائی یا کوئی اور بھی ہے جو وہ اپنا مذہب چھوڑ کے دین اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا یا قبول اسلام نہیں کر لیتا، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو اسلام ایک ہی ہے، دین اسلام ایک ہی ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں یا محترم سامعین جو بھی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق وعدہ کم تم سے، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کوہ طور پر، ٹھیک ہے، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقا ورفعنا اور ہم نے اٹھا لیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر پہاڑ کو، تو جو طور کا پہاڑ ہے وہ اللہ نے اٹھا لیا۔
फिर अल्लाह ने कहा खुजू पकड़ो मा आतईनाकुम जो हमने तुम्हें दिया बिकुव्वतिन मजबूती के साथ वस्कुरू और याद करो माफी ही जो इस किताब में है। ठीक है, हज़रत मूसा की जो किताब में तौरात, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब यहाँ पे जो अहद लिया जा रहा है, अहद का माना यह है कि किसी शय की हिफाजत करना और हर हाल में उसकी रियायत करना। जिस अकद की रियायत लाजिम हो उसको भी अहद कहते हैं। हमारी अक्लों में जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का इकरार है उसको भी अहद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें किताब दी, सुन्नत दी, अहकाम दिए, उनकी इताअत का इकरार करना भी अहद में ही शामिल हो जाता है। और जिस चीज़ को शरीयत ने लाजिम नहीं किया हम उसको खुद से मान लें तो वो अहद नहीं बल्कि वो नज़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल-मुफ़रदात में मुख्तसर इसकी लुग़वी जो है वो तशरीह हमने बताई आपको। और अल्लाह ने फरमाया मीसाक़कुम, मीसाक़, ठीक है, वसाक़त से अगर हम बात करें मीसाक़कुम खुज़ू मा आतईनाकुम बिक़ुव्वा, तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ को मजबूत करना, रस्सी से बांधना। मीसाक़ जो है वो उस अहद को कहते हैं कि जिसको कसम और इकरार के ज़रिए मुअक्कद किया गया हो, ठीक है, जोड़ा गया हो कि अब इसके तोड़ने का कोई ख़तरा नहीं होगा। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि जो मैंने तुमको किताब दी, ये देखिए खुज़ू मा आतईनाकुम बिक़ुव्वा, जो किताब दी गई है वो मजबूती के साथ पकड़ लो। उससे पहले ने फरमाया वरफ़अना फ़ौक़कुम, जो पहाड़ बुलंद किया। अब यहाँ पे पहाड़ से मुराद जो है वो क्या है, तो सरयानी ज़ुबान में तूर जो है वो पहाड़ को कहते हैं। ठीक है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तौरात की कुछ अलवा जो है वो नाजिल हुई और उन्होंने फरमाया कि इनको ले जाओ और इनकी इताअत करो, तो उन्होंने कहा, कौम के लोगों ने कहा कि जब तक अल्लाह आपकी तरह हमसे कलाम नहीं करेगा तो हम ये बात नहीं मानेंगे। तो फिर अल्लाह ने उन पर एक बिजली भेजी और वो सारे जिंदा मर गए और उसके बाद वो दोबारा भी जिंदा किए गए थे। तो ये वो वादा था जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से किया था कि हम तौरात के अहकामात पर अमल करेंगे, नहीं करेंगे तो ये पहाड़ हम पर गिर जाएगा। तब उन्होंने तौरात पर अमल ना किया, अमल करने का वादा तो कर लिया लेकिन वो अमल ना कर सके। तो अल्लाह ने पहाड़ को जब ऊपर उठा लिया तो फिर वो सामने सजदा ज़ेर हो गए, सामने जो है वो सारे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर झुक गए, माफ़ी मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन सबको माफ़ कर दिया और रहम फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें जो कुछ भी है उसको ले लो, उसको याद करो, गौर व फिक्र करो और इसके हकाम को ज़ाय ना करो। और ये सारे काम करने का जो मकसद है वो ये है कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ठीक है, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, तो तुम फिर गए इस अहद के बाद। सुम्मा फिर तवल्लैतुम, तुम फिर गए मिन बादि ज़ालिका, इस अहद के बाद। फलौला, बस अगर ना, फज़लुल्लाहि होता, फजल अल्लाही, अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होता या ना होती तुम पर, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो यकीनन तुम जो है वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। ठीक है, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती तो यकीनन तुम जो है वो नुकसान उठाने वालों में हो जाते। अब ये जो अगली आयत मुबारका है, इससे आगे जितनी भी आगे 2-3 आयत चल रही हैं उनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है। वलक़द, और यकीनन बेशक, आलिम तुमने जान लिया, अल्लज़ीना, वो लोग, इहतदौ जो कि हद से बढ़ गए, मिनकुम तुमसे, फिस सबती, हफ्ते के दिन के बारे में, फ़कुलना, तो हमने कहा, लहुम उन्हें, कूनू हो जाओ, क़िरदतन बंदर, खासिईन ज़लील। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जो है वो कारोबार करने से, मछलियाँ, ख़ुसूसन मछलियाँ पकड़ने से जो है वो हफ्ते के दिन मना किया था, लेकिन उन लोगों ने जब वो हौज़ बना ली और हौज़ में जो है वो मछलियाँ आ गई हफ्ते के दिन और वो पकड़ते थे इतवार को, तो वो कहते थे कि हम तो जो है वो हफ्ते के दिन नहीं पकड़ रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा कि तुम ज़लील बंदर हो जाओ, तो उन लोगों को जिंदा ही बंदरों में तब्दील कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि ये कौम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईला में आबाद थी। और ये जो बात की जा रही है बंदरों के बारे में, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि 12,000 यहूदी जो है वो बंदर कैसे बन गए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दूंगा, तो आप जो है वो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये शहर जो है वो ईला मदीना और शाम के दरमियान साहिल समंदर पर वाक़ था। इस जगह के समंदर में साल के एक महीने में इतनी कसरत से मछलियाँ आती थीं कि पानी दिखाई नहीं देता था, और बाकी महीनों में
हफ्ते के दिन इसमें बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थी। ठीक है, हफ्ते के दिन ज़्यादा मछली आती थी तो अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं पकड़ो। अब इन लोगों ने क्या काम किया, मुख्तलिफ जगह पर हौज़ बना लिए और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर उन हौज़ों से मिला दी। अब हफ्ते के दिन इन हौज़ों में मछलियाँ चली जाती और वो इतवार के दिन इनका शिकार कर लेते और वो कहते थे कि हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। बनु इसराइल का हफ्ते के दिन मछलियों को हौज़ों में मुकीद कर लेना यही उनका हद से बढ़ जाना था। वो एक बड़े लंबे अरसे तक इस नाफरमानी में मशगूल रहे, नस्ल दर नस्ल उनकी औलाद भी इसमें मुलव्वस रही। तो फिर खुदा का खौफ आया। कुछ लोग जो है वो मना भी करते थे, कुछ इसको बुरा भी जानते थे, लेकिन ये बाज आने वाले नहीं थे। फिर ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया और वो अजाब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा कि तुम बंदर बन जाओ। तो वो सारे के सारे जो है वो बंदर बन गए, जलील बंदर हो गए। और कहा जाता है कि वो 2-3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद वो सारे के सारे मर भी गए थे। तो अल्लाह ने फरमाया उन लोगों को कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी, वो वजह ये थी कि समंदर में हफ्ते के दिन ही कसरत से मछली आती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तो जस्ट उनका इम्तिहान लेना था, आजमाइश लेनी थी कि अगर मैं उनको मना करता हूँ इस काम से तो क्या वो मेरी बात को मानते हैं, समझते हैं या नहीं। तो उन लोगों ने जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बात से इनकार किया, बात को नहीं माना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहीं पे अजाब दे दिया। अब कहा जाता है कि जिन लोगों ने हफ्ते के दिन जो है वो मछली का शिकार किया था उनकी मैसियत की वजह से अल्लाह ने उनको मसख करके बंदर बना दिया था और जितने भी वो लोग मौजूद थे वो तकरीबन 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद वो सारे के सारे जो है वो मर गए। जामिउल बयान। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम से मना कर दिया हो उसको चाहे वो कोई भी काम हो उससे रुक जाना चाहिए। अगर हम उसमें अपने फ़ायदे या नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। इसलिए ये सारे के सारे अहकामात जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की भलाह के लिए, फलाह के लिए ही मुकर्रर किए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का अहकाम आ जाए तो फिर उसके बाद वमा कान लहुम, किसी को नहीं होता मिनल खियरा, कोई भी इख्तियार। ठीक है, जब अल्लाह इल्ला अमरहुम, अगर जब ये कि अल्लाह का काम आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो अल्लाह के अमर के आने के बाद, अल्लाह के हुक्म के आने के बाद किसी को कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता कि वो उसके अंदर कोई नुक्स निकाले। मतलब सामीन, आज की वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अभी ईशा की नमाज का टाइम भी हो रहा है तो इंशाल्लाह हम चलते हैं नमाज की तरफ, नमाज की तैयारी करते हैं। बाकी मिलती हैं और इससे अगली जो वीडियो आ रही है हमारी वो इंशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली हैं, क्योंकि उसमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे अहकामात के बारे में ज़िक्र किया है कि जो कि बनी इसराइल के लोगों के लिए बहुत बड़ा और वज़नी इम्तिहान था। और वो क्या इम्तिहान था? और वो इम्तिहान ये था कि इस सूरह मुबारका का नाम जो बकरा है वो क्यों रखा गया, उसकी तफसील हम इंशाल्लाह आपको आने वाली अगली आयात मुबारका की तशरीह में देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।